Hello friends, good morning everyone. Welcome to Commerce Classes. Today we are going to discuss an important topic, that is GST, Goods and Service Tax. So it is also an essential part from tax point of view, as in Indian system we are having both type of taxes, like as direct tax and indirect tax. This is a part of indirect tax, and why it is called as indirect tax. So in order to learn about that, we must first understand what is tax. So tax is a compulsory collection of money by the government किससे कलेक्ट करती है? फ्रॉम पब्लिक. बेसिकली टैक्स originate from a Latin word taxor, which means to appreciate or to value something. So basically tax is a compulsory collection of money by the government from the public in the form of tax. Example ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, for example we are having two types of taxes, direct tax and other one is indirect tax. Direct tax is like income tax, wealth tax, gift tax. At present we are only having income tax as a form of direct tax. These two are wiped out from the market. On the other hand, we are having indirect tax, that is GST, which is at present working. Earlier we are having lots of indirect taxes like VAT, CST, Central Sales Tax, excise and lots more. At present we are working with GST, that is the form of indirect tax. So how indirect tax is collected, if we want to talk about that, we will later on learn this in our video. So let us discuss what is goods and service tax. So basically, first of all, goods and service tax is introduced in our constitutions with 101st Amendment Act 2016. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसे 101st Amendment Act के अंतर्गत लाया गया है. कह सकते हैं कि it is a 101st Amendment of the Constitution and it is known as 101st Constitution Amendment Act 2016. So Constitutional Bill 2014 receives the assent of the President of India on 8 September 2016. कॉन्स्टिट्यूशन में 2014 में बिल पास किया गया था जिसकी असेंट प्रेसिडेंट द्वारा ऑन 8 सितंबर 2016 को मिली थी एंड बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 2016 विद द 101st अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिकली ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का भी बन जाता है कि जीएसटी हमारी कौन सी अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आता है. इट इज़ द 101st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन की 101st अमेंडमेंट के बाद जीएसटी को लाया गया, विच पेव्स द वे फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया. अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स की जीएसटी के बारे में. देयर इज़ अ ड्यूल कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल अथॉरिटीज़ फॉर ऑल द सेसेस. जीएसटी के अंदर स्टेट का भी कंट्रोल है और सेंट्रल का भी कंट्रोल है. एज पर द आर्टिकल 246A, द पावर्स टू लुवाई जीएसटी हैज़ बीन गिवन टू द पार्लियामेंट एज वेल एज टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट. पार्लियामेंट के द्वारा जीएसटी कलेक्ट करने की पावर्स लेजिस्लेचर दोनों को दी गई है, एज पर एज स्टेट को भी और सेंटर को भी. तो हमारे पास वेरियस फॉर्म्स ऑफ जीएसटी है, लाइक सीजीएसटी,
IGST, SGST, UTGST। CGST होता है जी enacted by Central Government of India, that is Central Goods and Service Tax। IGST Integrated Goods and Service Tax, SGST State Goods and Service Tax, UTGST Union Goods and Service Tax। State GST is represented by the state government, rest all three are represented by the central government। IGST will be apportioned between center and state in the manner provided by the parliament by law as per the recommendation of the GST council। IGST जो भी कलेक्ट होगा वो डिवाइड कर दिया जाएगा किसके अंदर, सेंटर और स्टेट के अंदर, जैसे भी पार्लियामेंट ने लॉ पास करके डायरेक्शंस दिए हैं जीएसटी काउंसिल को उसके द्वारा। जीएसटी विल बी लिवाइड ऑन ऑल द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जीएसटी किन चीज़ों के ऊपर लागू किया जा रहा है, ऑन ऑल द सप्लाई ऑफ गुड्स, जहाँ भी हम गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, एंड एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर के ऊपर क्या लगता है जी, एक्साइज लगती है, इसलिए इसे इंक्लूड नहीं किया गया, इसे जीएसटी के प्रावधान से बाहर रखा गया है। फर्दर इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ओनली आईजीएसटी विल बी लिवाइड। अगर हम सर्विसेज की इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स फॉर determining the place of supply and when a supply takes place in the course of interstate trade or commerce shall be decided by the parliament। जो place of supply होगी उसके ऊपर जो interstate trade है, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट को ट्रेड किया जा रहा है तो उसके ऊपर डिसीजन किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है कि वो कैसे जीएसटी डिटरमिन करेंगे। द पावर्स टू लिवाई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। जो हमारे पास सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लागू करने की पावर है, जो एक्साइज ड्यूटी जहाँ पर लागू की जाएगी वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, लाइक पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट्स कॉमनली नोन एज पेट्रोल। मतलब इन सब के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, इनके ऊपर क्या लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है जी। एक्साइज ड्यूटी के ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी, हाई स्पीड डीजल के ऊपर, मोटर स्पिरिट्स कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू में भी कई बार आया हुआ है कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, उनमें से कोई ऑप्शन दी जा सकती है। तो ये ऑप्शंस हैं, जैसे पेट्रोलियम के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, इसके ऊपर क्या लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट्स, नेचुरल गैसेज, एविएशन टर्बोइल एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। However, once GST is imposed, there will be no duty on manufacturer of these goods। जैसे GST लिवाई कर लिया जाएगा उसके बाद इनके मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर GST का बर्डन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। No duty on manufacturing of these goods is levied। The power to impose tax on sale of the following products is still provided to the state government। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स रखी गई हैं कि अगर वो टैक्स लगाना चाहें, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम क्रूड, हर स्टेट के अंदर पेट्रोल का डिफरेंट प्राइस है, ड्यू टू स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर छोड़ी गई है कि वो उसके ऊपर कितना टैक्स लगाना चाहते हैं, कितनी एक्साइज कलेक्ट करना चाहते हैं। तो हर एक स्टेट का डिफरेंट एक्साइज पैरामीटर है, जिसकी वजह से हमारा पेट्रोलियम प्राइस वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और हाई स्पीड डीजल के ऊपर भी पावर्स स्टेट के पास दी गई हैं कि वो सेल के ऊपर कितना टैक्स इम्पोज करना चाहते हैं। मोटर स्पिरिट्स, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बोइल, टर्बाइन फ्यूल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। However, once GST Council is recommended the date from which GST is imposed on these products, except for alcoholic liquor for human consumption, no sale tax will be imposed on these products। इनके ऊपर किसी भी तरह का सेल्स टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा, इनके ऊपर एक्साइज या तो लगेगी या जीएसटी लगेगा। इन फ्यूचर अगर कोई अमेंडमेंट आती है कि इसे भी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। तो फर्दर बात करते हैं हम जीएसटी एज इट इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2017। जीएसटी कब इम्प्लीमेंट किया गया, 1 जुलाई
17। ठीक है जी, तो बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मीन्स द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। किसके ऊपर लिवाई किया जाता है? सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या दोनों पर। तो जीएसटी सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लागू किया जाता है, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसे हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है जी। जीएसटी इज अ वैल्यू एडिड लिवाई ऑन सेल और सर्विसेज और बोथ। इसे हम वैल्यू एडिड लिवाई भी बोल देते हैं सेल्स और सर्विसेज पे। जीएसटी इज अ डिस्टिंक्शन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, तो इसे हमें डिस्टिंग्विश करके कंजम्पशन बेस्ड टैक्स बनाया है। जीएसटी ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। जीएसटी वेयर बर्डन बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। अब जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्टली बर्डन किसके ऊपर पड़ता है? फाइनल कंज्यूमर पे। फॉर एग्जांपल किसी ने मैगी मैन्युफैक्चर की, मैगी मैन्युफैक्चर हुई, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर उसके ऊपर उसे टैक्स पे करना पड़ा। जब टैक्स पे किया फिर उसने होलसेलर को सेल किया, होलसेलर ने टैक्स कलेक्ट करना है किससे? रिटेलर से। रिटेलर ने किससे टैक्स कलेक्ट करना है? कंज्यूमर से। तो अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर है? मतलब मैन्युफैक्चरर ने बनाया, कंज्यूमर ने लिया, तो अल्टीमेटली जब हम मैगी परचेज कर रहे हैं तो हमारे ऊपर टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो गया। तभी प्राइस ऑफ मैगी के ऊपर लिखा होता है ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर इंक्लूडेड। तो इसका मतलब क्या है? वो जीएसटी हमसे इनडायरेक्ट फॉर्म में ले रहे हैं। इट एलिमिनेट्स कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स का इफेक्ट कम हो जाता है इसके ऊपर। वो किस तरह से? जैसे हमने वैट में किया, अगर आपने किसी ने वैट पढ़ा हो तो वैट के अर्लियर हमारे वैट इंक्लूड किया था, तो उसके ऊपर कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स का इफेक्ट कम पड़ता था वैट के इंट्रोडक्शन के बाद, बिकॉज सभी तरह के टैक्सेस कलेक्ट करते थे। तो जीएसटी हमारा कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस को एलिमिनेट करता है। जीएसटी ब्रिंग्स यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया सेम टैक्सेशन है। अगर इन्होंने रेट्स प्रिस्क्राइब किए हैं 5%, 10%, 18%, तो उनके बेसिस के ऊपर ही टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। एडवांटेजेस क्या है जीएसटी की? इट इज़ अ वन नेशन वन टैक्स, मतलब ऑल ओवर इंडिया में जीएसटी एप्लीकेबल है, इसीलिए इसे वन नेशन वन टैक्स कहा गया है। रिमूवल ऑफ बंडल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक वैट, सीएसटी, सेंट्रल टैक्स, सर्विस टैक्स एंड एक्साइज। मतलब जो हमारे पहले बंडल ऑफ टैक्सेस लगाए जाते थे, स्टेट में एंटर कर रहे हैं तो स्टेट सेल्स टैक्स लगाओ, है ना। सेंटर के अंदर अगर हम किसी वन स्टेट से अनदर स्टेट जा रहे हैं तो सीएसटी लगता था, फिर उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी पे करनी पड़ती थी, वैट स्टेट वाइज कलेक्ट किया जाता था। तो बंडल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिमूव करके जीएसटी लाया गया। फर्दर रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस इज रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, दैट इज रिमूव टैक्स ऑन टैक्स। फर्दर इंक्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेनिफिट मिला है जीएसटी के कारण। अब एक बार ही टैक्स पे करना पड़ता है, अगर वो चाहे रिटर्न वाइज क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हो, 6 मंथली कर रहे हो या एनुअली कर रहे हो, या आपने कोई कंपोजिट स्कीम ली है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लेटर अपनी वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज डिमांड्स विल लीड्स टू इंक्रीज सप्लाई, हैंस देयर विल अल्टीमेटली लीड्स टू राइज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जैसे हमारे प्रोडक्शन अब टैक्स ऑन टैक्स का इफेक्ट कम होगा, हमारे पास पैसा बचेगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लोअर होगी, डिमांड इंक्रीज करेगी, सप्लाई भी इंक्रीज करेगी, विच अल्टीमेटली लीड्स टू हायर रेज ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें क्या है? प्रोडक्शन इंक्रीज करती है। फर्दर ड्यूल मॉडल है जीएसटी के अंदर। इट विल बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट एंड दीज जनरेट्स इंक्रीज जीडीपी विद गेनफुल एम्प्लॉयमेंट लीडिंग्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जीएसटी के कारण हमारी एक्सपोर्ट्स भी बूस्ट कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। फर्दर जीडीपी इंक्रीज करेगी, एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट होगा तो जीडीपी भी ग्रो करने के चांसेस है, इकोनॉमी ग्रो होगी। फर्दर जीएसटी का हम कह सकते हैं कि ड्यूल मॉडल इंडिया में एप्लीकेबल है। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट मॉडल्स एप्लीकेबल किए जाते हैं। इंडिया में ड्यूल जीएसटी मॉडल है, जैसे कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी लगाया जाता है और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी लगाया जाता है।
तो हम इसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं CST लिवाइज एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल, उसे बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017, दैट इज CGST। इट इज़ द रेवेन्यू सोर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी सेंटर की सरकार है उनका एक रेवेन्यू का सोर्स है बेस्ड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ। जब भी हम इंट्रा स्टेट, फॉर एग्जांपल पंजाब से हरियाणा कोई गुड सप्लाई कर रहे हैं तो इंट्रा स्टेट के अंदर क्या लगेगा, GST लगेगा। अगर इंटर स्टेट है, विद इन स्टेट है, तो उसके अंदर क्या लगेगा, SGST एप्लीकेबल होगा। SGST लिवाई एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज विद स्टेट लेजिस्लेचर नेमली दिल्ली एंड पौंडीचेरी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन टेरिटरीज। हमारी जो यूनियन टेरिटरीज है विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अगर यूनियन टेरिटरीज में कोई गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किए जा रहे हैं उस केस के अंदर UTGST लगाया जाता है। नोट इन इंडिया, इंडिया इज अ union of states. The territory of India comprises of the territories of the states and union territories. Currently there are 29 states and 7 union territories, of which 2 are Delhi and Pondicherry are having legislature. इनमें से दिल्ली एंड पौंडीचेरी के अपने डिफरेंट लेजिस्लेचर है, तो वहाँ पर GST के प्रावधान के अंदर UTGST एप्लीकेबल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज जहाँ पर डिफरेंट लेजिस्लेचर है वहाँ पर स्टेट लिवाइड सर्विसेज या स्टेट GST एप्लीकेबल नहीं होता इन केस ऑफ, चाहे वो इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, तो उस केस में हम UTGST इंट्रा स्टेट ही मानकर चलेंगे। फर्दर बात करते हैं GST इन यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। GST उन यूनियन टेरिटरीज में जिसके अंदर लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे दिल्ली एंड पौंडीचेरी का डिफरेंट लेजिस्लेचर है, अपना ही लेजिस्लेचर है, तो सप्लाईज विद इन सच यूनियन टेरिटरीज लाइक सेंट्रल GST विल अप्लाई। तो उस केस में क्या लगेगा, CGST लगेगा, सेंट्रल GST लगेगा। जहाँ पर यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेचर अपना खुद का नहीं है उस केस के अंदर सेंट्रल GST अप्लाई किया जाएगा टू होल ऑफ इंडिया एंड हेंस इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल यूनियन टेरिटरीज with or without a legislature. To replicate the law similar to the state GST to the union GST without legislature, the parliament has power under article 246(4) to make such laws. Alternatively, the president of India may use his general power to formulate such laws. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है, अगर कोई उसके अंदर अल्ट्रेशन करना चाहते हैं, कोई अल्टरनेटिवली कोई चेंजेस लाना चाहते हैं तो लेजिस्लेचर के अंदर वो ला सकते हैं। तो जो भी हमारी यूनियन टेरिटरीज जिसके अंदर लेजिस्लेचर नहीं है, लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो ये सब हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। 5 यूनियन टेरिटरीज जो विदाउट लेजिस्लेचर हैं और 2 दिल्ली एंड पौंडीचेरी जिसके अंदर लेजिस्लेचर अवेलेबल है हमारा पार्लियामेंट के द्वारा। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। IGST वुड बी लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। IGST कौन कलेक्ट करेगा और कौन लिवाई करेगा, कौन लागू करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करेगी ऑन ऑल इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल पंजाब टू हरियाणा, पंजाब टू दिल्ली, मतलब डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जब हम जा रहे हैं तो IGST एप्लीकेबल होगा। द रेवेन्यू ऑफ इंटरस्टेट सेल्स विल नॉट एक्रू टू द exporting states, and exporting states will be required to transfer to the center and the credit of SGST UGST used in payments of IGST। तो ये कह रहे हैं कि रेवेन्यूज जो इंटरस्टेट सेल्स के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा विल नॉट एक्रू टू द एक्सपोर्टिंग सेल्स एंड एक्सपोर्टिंग सेल्स विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर टू द सेंटर। मतलब जो भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो IGST के फॉर्म में सेंटर के पास ही जमा होगा इन द फॉर्म ऑफ IGST पेमेंट्स। So I hope for this today this much is enough. Further we will discuss in our next lecture about the lectures. I hope you like the video. Further I will continue my GST lectures day by day, and I hope you like my video. If you like my video, please press the like button given below. Thank you so much and subscribe.